हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू सॉ द प्रीवियस चैप्टर and you are here for the next chapter. Okay, so before beginning with anything, I would like to tell you that this series is going to be helpful not just for the people who are in their ninth standard, but it is also helpful for the people who are anyhow preparing for any kind of competitive examination which requires science of class 9th in the NCERT, right? So you can cover it up easily, put the video in any speed which you are comfortable in, and you can easily listen to it in one go. Okay, so I'm going to I'm going to cover all the important aspects and leaving behind none. Okay, so just do not worry. Now with this we'll just jump into the studying part. Okay, so in the previous chapter what we learned was about what is a matter, right? What are the particles of matter? What are the characteristics of these particles? What is it made up of, right? We learned about the different forms, different states, that was solid, liquid and the gaseous. We learned about the melting point, the boiling point, the properties of these states and how are they different from one another. Then we learned about evaporation. What is evaporation and how it is caused, right? These were the certain things which we learned. Now in this chapter, that is chapter number 2, matter in our surrounding, we are going to learn about what exactly is happening with the matter, what are the changes, what exactly it is. Okay, so without wasting much time, let us begin with this new chapter. Okay, so before just going on with it, I'll want to begin from here. You must be thinking कि ये बीच पेज से क्या स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर तो पहले शुरू हुआ है. But to understand easily the beginning part, it would be helpful if we just go through this portion once, so that you will be more familiar with the words which I'm going to use in the video ahead. Okay, so the first thing we are going to learn is the physical and the chemical change. Okay, so do you know what are the physical changes and what are the chemical changes? If no, then let me give you an example. Okay, so what do you understand? Like, these terms are self-descriptive. So when there is a change in the physical characteristic of any substance, the change is going to be physical. If it would be a chemical, it would be a change in the chemical composition, the change would be known as chemical change. Simple, in a layman language. Okay, so basically physical change वो है जो कि reversible हो. Now what is reversible? What is reversible? रिवर्सिबल कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप वापस कर सकते हो, राइट? जैसे अगर आइस है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन आइस, यू कैन मेल्ट इट, इट मेल्ट्स, इट बिकम्स वाटर, you can refreeze that water and it becomes ice again. So this is a reversible change, right? There was a change in the physical characteristic of this matter. Ice was converted into water, right? So this was a reversible change. But for example, if you cook food, तो सब्जियों के केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया. हाउ? जो रॉ फूड था वो बन गया पक्का हुआ फूड, right? It's cooked now. Can you return this? Can you reverse this cooked food into being the raw food? No, right? Once changed, it cannot be taken back into its original form, right? So let us go into deep. Okay. The properties that can be observed and specified are color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. ये सारी कैसी properties है? Physical properties, because we can notice it, right? The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in the composition and no change in the chemical nature of the substance. Example was ice to water. Easy example, सबसे layman example. ठीक है, सिर्फ physical state में change हुआ है, but जो chemical composition है वो क्या है? H2O की है ना. H2O में तो कोई change नहीं आया, right? Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. So these are nothing but different what? Different forms in different forms, right? So water, vapor, so these three are nothing but different forms of same component, that is H2O, right? So both water and cooking oil are liquid, ठीक है, बट द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. वाटर H2O का बना है, कुकिंग ऑयल किसी और चीज की बनी होगी. ओडोर, इन्फ्लेमेबिलिटी, ठीक है, वी नो दैट द ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर, है ना. इट
is this chemical property of oil that makes it different from the water. Burning is a chemical change, क्योंकि burning में क्या हो रहा है, you cannot reverse that process. A thing once burnt, उसका form change हो जाता है. It cannot be reversed back, right? During this process, one substance reacts with another to undergo a change in the chemical composition. Chemical change brings changes in the chemical properties of the matter and we get new substance. एक new ही substance बन के आ जाता है. Like if we burn a log of wood, क्या होगा? Ashes बन जाएंगे, ठीक है? तो वो ashes convertible होंगे क्या? एक new substance form हो गया ना ash. You cannot convert it back, right? So moving ahead. So these kind of changes is also known as chemical reaction. जैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इसमें क्या है, फिजिकल भी है केमिकल भी है. फिजिकल कैसे, जो वैक्स मेल्ट हो रही है, ठीक है, वो चीज आप ठीक कर सकते हो, ठीक है, बट वो चीज आप उस वैक्स को वापस रीस्ट्रक्चर कर सकते हो ना. मेल्टेड वैक्स अगर इफ यू कलेक्ट इट, यू कैन जस्ट रीस्ट्रक्चर इट, बट इट इज अ केमिकल चेंज. वाई, हाउ, द बर्निंग पार्ट, जो उसका फ्लेम है जो कि बर्न कर रहा है, दिस पोर्शन वुड बी अ, दिस बर्निंग वुड बी अ केमिकल चेंज. यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, राइट. नाउ लेट अस डू दीज क्वेश्चंस, लेट अस सी, गो थ्रू देम वंस. ओके, सो व्हाट इज इट सेइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल चेंजेस. ठीक है, कटिंग ऑफ ट्री, कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है क्या ट्री का, नो, राइट, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, लेट मी नो, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन विल बी अ फिजिकल चेंज, क्योंकि अभी सिर्फ मेल्ट हुआ है वो, ठीक है, बटर अभी बटर ही है. ओके, rusting of an almirah, there would be a change in chemical property, right? So likewise you can complete these questions. In case of any doubts, you can just put it in the comment box, right? Now moving ahead, we had what are the types of pure substances. Pure substances होते क्या है? So on the basis of the chemical composition, substances can be classified either as elements and compounds. ठीक है, ये दो चीजें हैं. अब ये क्या है और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड जो ऊपर का रेफरेंस है, प्योर सब्सटेंस जो प्योर टर्म का मेंशन है, वो हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स को यूज करे बिना नहीं समझ में आने वाला, राइट. सो टू बिगिन विथ, रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661. ठीक है, now for the people who are in their 9th standard, this thing might not be important, but for the people who are going to appear for any kind of competitive exam, these small names of scientists, the years might be helpful. You can never predict what is going to happen in any kind of examination, right? Okay, so Antonio Laurent Lavoisier, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. अब उनका, they are bringing out the new term, coining a new term, then they are bringing out the definition, right? He defined an element. What is an element? Now let's see, here we are going to get the definition. Chalo. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. So basic form of matter है जिसको break down नहीं कर सकते simpler substances में किसी भी chemical reaction से. I'll give you an example. Can you tell me one? Can you think of even one element? कि यार ये चीज तो फिर element हुई ना. Okay, so I'll give you a basic example. ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा. Wait, I'll just write. Oxygen. So oxygen in itself is an element. ठीक है. Then if we talk about, what is this? Hydrogen. Okay, so this is another kind of element. So ऐसे ही elements क्या है, ये इसको further H ही तो है, you cannot break it down further by any kind of physical, chemical, any kind of process, right? So what do we understand कि element क्या है? Element is a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by any chemical reaction, right? एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स. 3 डिवाइड कर दिए हैं. अब इनकी प्रॉपर्टीज दे दी है, ठीक है. मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? दे हैव अ लस्टर. लस्टर मीन शाइन. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. गोल्ड, सिल्वर, व्हाट डू दे डू? दे शाइन, राइट. दे हैव सिल्वर, ग्रे और गोल्डन येलो कलर. ओके, वी आर ऑल फेमिलियर विद द कलर्स. वी हैव सीन ब्रोंज, ब्रास, ETC, कॉपर, सारे मेटल्स देखे हैं ना हमने. सो आइदर दे आर सिल्वर ग्रे और दे आर गोल्डन येलो. They conduct heat and electricity, right?
इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए वी यूज कॉपर वायर्स ओनली, राइट? सो बेसिकली मेटालिक वायर्स आर गेटिंग यूज. दे आर डक्टाइल. डक्टाइल बोले तो क्या? डक्टाइल कैन मीन्स दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू डक्ट्स. व्हाट आर डक्ट्स? डक्ट्स आर पाइप्स और लाइन्स. सो यहाँ पे आप समझ सकते हो डक्टाइल टर्म से. इंस्टेड ऑफ गेटिंग कंफ्यूज यू कैन जस्ट रिलेट इट. So they are ductile means they can be drawn into wires. Okay, now they are malleable. Malleable means they can be hammered into thin sheets. Thin sheets बोले तो बहुत ही ज्यादा पतली, ठीक है? तभी आपने देखा होगा ना गोल्ड मेटल से जो ज्वेलरीज वगैरह बनती है, इट इज वेरी थिन, इट इज वेरी वेरी थिन, राइट? हाउ इज इट बीइंग मेड? बिकॉज उन मेटल्स के अंदर क्या है? मेलिएबिलिटी है, राइट? अलग अलग शेप के बर्तन बन रहे हैं, यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग इज बीइंग मेड, राइट? दे आर easily hammered, right? Now they are sonorous. Sonorous means they make a ringing sound. Bell किस चीज से बनती है? Obviously it is made up of a metal and that is why it is sonorous. Sonorous means it makes a ringing sound when it is hit. So examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury, this is an exception. Okay, so you might be asked questions upon this. ठीक है? Mercury क्या है? Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ठीक है? ओके, मूविंग अहेड वी हैव नॉन मेटल्स. इनकी क्या प्रॉपर्टीज है? वैरायटी ऑफ कलर शो करते हैं. पुअर कंडक्टर, बिल्कुल इनके ऑपोजिट. यहाँ पे क्या कलर था? कलर फिक्स था, सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो, मेजोरिटी इसी में आ जाएंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस नॉन मेटल्स वैरायटी ऑफ कलर, देन द मेटल्स वर गुड कंडक्टर्स, दीज आर बैड कंडक्टर्स. They were lustrous, they had luster, these are non-lustrous. So examples of non-metals are hydrogen, oxygen, iodine, carbon, bromine, ठीक है, chlorine, etc. Some examples have intermediate properties between those of metals and non-metals and hence they are called metalloids. Example क्या है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. इनकी क्वालिटीज थोड़ी सी मेटल जैसी है, थोड़ी सी नॉन मेटल जैसी है. दैट इज वाई दे आर नोन एज metalloids. Now let us see this table once. The number of elements known at present are more than 100. 92 elements are naturally occurring and the rest are man-made. Majority of the elements are in solid nature. 11 elements are in gaseous state at room temperature. 2 elements are liquid at room temperature. कौन सा है? Mercury and bromine. Mercury is what? Mercury is a metal. Exception क्या पढ़ा था mercury का? कि it is the only metal which stays liquid at room temperature. Right? Then हमारे पास क्या था? Bromine. Bromine का क्या है? Bromine is a non-metal. ओके, ब्रोमीन के एक्सेप्शन क्या होगा? विल गेट टू नो इट फर्दर, मैं बताऊंगी अभी. चलो, नाउ एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर 303 Kelvin. Now for the people who are appearing for any kind of competitive examination, this is a very important information, just mark it, that these are the two elements, gallium and cesium. They are liquid at room temperature, at a temperature which is just slightly away. Normal room temperature हमारा क्या होता है? 298 Kelvin. कल ही कन्वर्शन का फॉर्मूला पढ़ा था. 25 जो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रूम टेम्परेचर बोलते हैं. ठीक है, अगर 25 को 273 में ऐड करोगे तो क्या आएगा? 298 Kelvin, राइट? सो 298 Kelvin हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर. उससे जस्ट 5 Kelvin एक्स्ट्रा पे ये जो है गैलियम और सीजियम, ये क्या कर रहे हैं? अपना स्टेट चेंज कर ले रहे हैं. ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग इन सॉलिड स्टेट. ओके, नाउ वील नो अबाउट वाटर कंपाउंड्स. ओके, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. अब मुझे एक एग्जांपल बताओ और आई शैल गिव यू. ओके, सो एग्जांपल इज H2O. एक एलिमेंट इसमें क्या है? ऑक्सीजन. दूसरा एलिमेंट इसमें क्या है? हाइड्रोजन. बट मिलके क्या बन रहा है? एक न्यू सब्सटेंस. व्हाट इज इट? दिस इज वाटर. दिस इज आर जल ही जीवन है, राइट? सो केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. सो कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म. एक फिक्स प्रोपोर्शन की हमेशा जब H, ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा जब H2O होगा ना, जब भी H2O होगा तभी वाटर फॉर्म होगा. HO में वाटर नहीं होगा. ये क्या है? ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड. विल गो इनटू दिस लेटर. ठीक है, तो H2O. ओके, सो दिस इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या है इसमें? 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन करेगा, सो देन ओनली इट इज गोइंग टू फॉर्म वाटर. ओके, सो लेट अस मूव अहेड. सी यहाँ पे ये क्वालिटीज ऑफ दीज गैसेस कैन बी आस्क्ड इजीली, राइट?
Hydrogen is what? Colorless, odorless, combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen. ठीक है. गैस obtained, हाइड्रोजन सल्फाइड. नाउ ये दो गैसेज है, इनके जो फीचर्स है उनके बारे में बता रखा है कि हाइड्रोजन इज व्हाट? कलरलेस, ओडोरलेस, कंबस्टिबल. ठीक है. नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड इसका क्या है? कलरलेस गैस विद स्मेल ऑफ रोटन एग्स. सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. दिस यू कैन मार्क एंड दिस यू कैन रीड. इट इज इंपॉर्टेंट बाय कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. You must have observed that the products obtained by both groups show different properties. Basically ये properties के बारे में, this is about these activities which have taken place. Okay. So basically हमें यहाँ पे क्रक्स में क्या निकल के आया है कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं ना एक मिक्सचर के, यहाँ का इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे बता रहे हैं आगे, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज कंपाउंड. ग्रुप 2 से क्या मिला था? हाइड्रोजन सल्फाइड. तो वो क्या है? दो चीजों को मिलके बना, हाइड्रोजन एंड सल्फर. तो क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड. सो इट्स अ कंपाउंड. हीट कर रहे हैं दो एलिमेंट्स को स्ट्रांगली, तो एक कंपाउंड मिल रहा है विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. ठीक है. मतलब देखो कंपाउंड में भी क्या हो रहा है? कंपाउंड में भी दो चीज मिल रही है. ठीक है. H और O मिल रहा है. ठीक है. बट जो चीज बन के आ रही है ना, इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी भी नहीं है और ऑक्सीजन जैसी भी नहीं है. इसकी अपनी खुद की न्यू प्रॉपर्टीज बन के आई. बल्कि एक लाइन हमने पढ़ी है ऊपर, अभी जस्ट पढ़ी है. ऑल्दो मैंने मिक्सचर पढ़ाया नहीं पूरा. विल गो इनटू मिक्सचर, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग वंस इट्स डन. सो जो कंपाउंड है इसमें जो एलिमेंट्स बन रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है. जो कंपाउंड बन रहा है बेसिकली एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इसकी प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट है. ओके. So the composition of a compound is the same throughout. We can observe that the texture and the color of the compound is the same throughout. We can summarize the physical and chemical change in the following graph. चलो आ जाओ देखते हैं जल्दी जल्दी. मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड या गैस है? प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा? प्योर में अंदर हमारे पास हमने पढ़ लिए हैं, हमने प्योर पढ़ा है राइट. प्योर के अंदर हमारे पास है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स. एलिमेंट्स इससे छोटे नहीं हो सकते. कंपाउंड में फिक्स कॉम्पोजिशन में है और ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू एलिमेंट्स. ठीक है. बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, फिजिकल नहीं. ओके. देन एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं. ओके. हम अब जाते हैं ऊपर मिक्सचर्स के पास टू अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर. नाउ यू आर फेमिलियर विद द वर्ड्स, द एलिमेंट, कंपाउंड एंड एवरी अदर वर्ड. सो इट वुड बी मच मोर इजियर टू टीच यू अबाउट दीज चैप्टर्स. चलो लेट अस गो अहेड जल्दी जल्दी. ओके. सो अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बेसिकली इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड by more than one kind of pure form of matter. Pure form of matter क्या था? एलिमेंट था या तो कंपाउंड था. ठीक है. एक या एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को कंबाइन कर लो, या तो दो एलिमेंट को कर लो, या तो दो कंपाउंड को कर लो, या तो एक एलिमेंट एक कंपाउंड कर लो, या तो दो एलिमेंट एक कंपाउंड. मतलब इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन मिक्स. ठीक है. सो अब प्योर सब्सटेंस को कंबाइन करके मिक्सचर बनेगा. ठीक है. एग्जांपल दे रखा है कि डिजोल्व सोडियम क्लोराइड जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं पानी से फिजिकल प्रोसेस से राइट. व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? इट इज NaCl. What is NaCl? It is nothing but our salt, common salt, right? So just do not worry, just read it. Scientific name से confuse नहीं होना है. ठीक है. Okay. Then so it can be separated by physical process of evaporation. However, sodium chloride जो NaCl है, इसको आपस में जो Na+Cl बन के ये बना है, इसको आपस में सेपरेट करने के लिए फिजिकल प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं होगा. इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा? बाय मीन्स ऑफ केमिकल चेंजेस. ठीक है. केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल. ठीक है. सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन इज द सेम थ्रू आउट. सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेज. वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव अ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर. टाइप्स ऑफ मिक्सचर में ना पहले ये बेसिक समझो कि यहाँ पे होता है दो, या तो होता है होमोजीनस या तो होता है हेट्रोजीनस. ठीक है. या तो होमोजीनियस मिक्सचर या तो हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस व्हाट वुड इट बी कि सेम, मतलब सेम काइंड ऑफ मैटर कंबाइन कर रहे हैं और बिल्कुल ही फिक्स ऐसे प्रोपोर्शन में कि भाई उसके बाद तुम ढूंढ भी नहीं पा रहे हो कि कहाँ गया. राइट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल इफ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर, नींबू पानी, राइट. सो उसमें क्या हो रहा है? होमोजीनियस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट. एंड द सोल्यूट इज व्हाट? सोल्यूट इज द सब्सटेंस जिसको हम डिसॉल्व करें. जैसे सॉल्ट विल बी द सोल्यूट इन केस ऑफ मेकिंग नींबू पानी, राइट.
देन सॉल्वेंट विल बी वाटर, जिसमें हम चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, और जो कॉम्पोजिशन है वो चाहे आप नींबू पानी ऊपर का लो चाहे आप नींबू पानी लास्ट का लो, कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट। आप थोड़ी देर उसको छोड़ भी दोगे ना तब भी ऐसा नहीं होगा कि नमक नमक नीचे बैठ गया। इट विल नॉट हैपन वंस यू मिक्स इट, इट हैज बीन डन, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट हैपेंस इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता थ्रू आउट, और वो प्रॉपरली डिसॉल्व भी नहीं होता। एग्जाम्पल आप मिट्टी ले लो, मिट्टी को पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करी, क्या होगा? आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मिट्टी, द सैंड वी हैव पुट इनसाइड द टम्बलर विल सेटल डाउन, right? It will not get mixed. The mixture, the combination which is being formed, it will not be stable. Stable बोले तो कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ी देर अगर छोड़ दिया तो जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, राइट। मूविंग अहेड, ये सेपरेशन के मेथड बता रखे हैं। अब जो इसके अंदर हमने टाइप्स पढ़ने हैं ना मिक्सचर के, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स, ठीक है। इसमें से हमारा होगा, पहला होगा सॉल्यूशन, ठीक है। देन हमारा होगा सस्पेंशन, देन हमारा थर्ड होगा कोलॉइड, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलॉइड है, इनमें से ये जो सस्पेंशन और ये कोलॉइड है ना, ये है हेट्रोजीनियस के टाइप, और ये सॉल्यूशन अकेला है होमोजीनियस का टाइप। ओके, तो लेट अस गो एंड डाइव डीप इनटू दीज, राइट, कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ सस्पेंशन, व्हाट इज व्हाट। ओके, सो मूविंग अहेड, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल लेमनेड का एग्जाम्पल दे दिया इसने भी, ठीक है। सो वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स ईदर सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसॉल्व्ड इन इट, बट सॉल्यूशन ना सॉलिड का भी बन सकता है, पता है। जो अलॉयज है इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अलॉयज एक्चुअली क्या होता है? दे आर नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ सॉलिड, राइट। वाटर क्या है? वो मतलब सॉरी, वाटर मतलब हम लिक्विड्स के साथ साथ 2 लिक्विड 2 सॉलिड, एक गैस एक लिक्विड एक सॉलिड, we can mix any kind of element to any kind of element to make a solution. It is not necessary that we will only have a liquid or a liquid gas solution. Okay, so यहाँ पे देखो, for people who are preparing for the competitive examination, again this portion is very important. Brass is a mixture of approximately 30% zinc and 70% copper. Okay, moving ahead. A solution has a solvent and a solute. Solvent क्या था? जिसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे थे. What would be a solute? The substance which we are dissolving in the other substance, right? The component of the solution that dissolves in the other component in it is called the solvent, and the component which is dissolved in the solvent is called the solute. Easy. Example यहाँ बता रखा है, we can read. See what is it? सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड क्या है? शुगर, शुगर को डाला पानी में, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें आयोडीन है और अल्कोहल है। एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर लिक्विड सोल्यूशंस, दीज कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये गैस का है, होमोजेनियस मिक्सचर है। नंबर ऑफ गैसेस का 2 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटीज। नाउ वी नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो एक सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स का साइज है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, ठीक है, इतने छोटे हैं डायमीटर में। ओके, so they cannot be seen by naked eyes because of very small particle size. They do not scatter beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in the solution. ठीक है, path of light मतलब वो सिंपल ऐसे नॉर्मल निकल जाते हैं, you cannot see what are the path it is traveling. And for more description, अभी जब आगे हम कोलॉइड और सस्पेंशन में भी ये चीज पढ़ेंगे, I'll elaborate. Okay, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. मतलब अब तुमने नींबू पानी बनाया, उसको छन्नी से छानोगे तो नींबू पानी का टेस्ट डिफरेंट थोड़ी हो जाएगा, right? So you cannot separate it by the process of filtration. The solute particles do not settle down when it is left undisturbed. That is, the solution is stable. Stable बोले तो वो चीज खराब नहीं होगी if you leave it for a long period of time. Now concentration of a solution. We observed that a group A and B obtain different shades of solution. So we will understand. यार देखो, ये activity we have not seen, ठीक है, but let us go ahead and see what is it actually talking about. तो जितना हाँ, ये दिस वी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट? डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट क्या है? जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है,
ठीक है, माइंड यू, जिसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है कम, सॉल्वेंट है ज्यादा। सिमिलरली ऑपोजिट इज देयर इन कॉन्सेंट्रेटेड, जो सॉल्यूट है वो है ज्यादा और सॉल्वेंट है कम। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। At any particular temperature, a solution that has dissolved much of a solute as it is capable for dissolving is known as a saturated solution. We understood this in the previous chapter, right? नहीं पढ़ा था ये solution हमने? I think we did not read it. Oh, let us go through it once again. Okay. सो जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, क्या एक तो हमने पढ़ लिया कि सैचुरेट वो डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में सॉल्यूट ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेटेड में कम है। नाउ विल नो व्हाट इज अ सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब एक किसी भी काइंड ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड। एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज मान लो नींबू पानी बना रहे हो, ग्लास ले लिया, पानी ले लिया, अब चीनी घोल रहे हो, उसमें चीनी घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, यू आर एडिंग फर्दर मोर स्पून्स ऑफ शुगर एंड यू आर स्टरिंग इट। what is happening after a point of while, you will observe कि no more sugar or salt is getting absorbed. So what happened now कि जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने भी पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस था, वो सारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो अब फर्दर स्पेस नहीं है for anybody to occupy any more space, right? So this kind of solution at this particular temperature is known as saturated. अब you will be noticing मैं टेम्परेचर क्यों बोल रही हूँ बार बार। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे ही सॉल्यूशन का टेम्परेचर फिर से वेरी करवा दिया जाएगा, उसकी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज करी जा सकती है। आई टेल यू हाउ। अगर इसी सॉल्यूशन को आप स्टोव पे चढ़ा दो, अब किसी यूटेंसिल में डाल के, व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड यू स्टार्ट स्टरिंग अगेन, यू विल सी कि थोड़ा बहुत और शुगर एब्जॉर्ब हो पा रहा है। ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड। सो द मोर द काइनेटिक एनर्जी, द मोर वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स इन विच दे आर मूविंग। सो जितना ज्यादा स्पीड, उतना ज्यादा स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, तो उतने ज्यादा पार्टिकल्स और इजीली एड अप हो पा रहे हैं, राइट, इजी। सो दिस वॉज हाउ वी न्यू कि एक फिक्स टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ देखो, टू अंडरस्टैंड सिविल लेमैन कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में डाला है ना हमने, सपोज मान लो कि 4 चम्मच डाला है, तो उस वाटर की सॉल्युबिलिटी इज 4 चम्मच। व्हाट इज इट? द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, if the amount of solute contained in the solution is less than the saturation level, it is the unsaturated solution. Basically फड्डा ये है कि जब तक वो saturated नहीं है तब तक वो unsaturated है। okay, मतलब कि जब तक उसमें और भी solute add हो सकता है, until then the solution is an unsaturated solution. Okay, so with the change in temperature we can increase the solubility. The concentration of a solution is the amount of mass or volume of the solute present in a given amount of solution. With this we come to the numerical part. Okay, तो जितना भी concentration किसको बोलता है कि कितना मास या कितना वॉल्यूम एक सोल्यूट का प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर अमाउंट मास या वॉल्यूम पे ऑफ सोल्यूशन। तो इसके दो फॉर्मूलाज है, मास बाय मास परसेंटेज। तुम्हें डायरेक्टली कैलकुलेट करने को देंगे, मास बाय मास कैलकुलेट करना है। तो मास बाय मास कुछ भी नहीं है यार। हाउ डू वी कैलकुलेट अ नॉर्मल परसेंटेज कि जो भी हमें चीज दे रखी है प्लस जो टोटल चीज थी, ठीक है, इनटू 100। सो वही कर रखा है यहाँ पे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये क्या आ जाएगा? मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। याद रखना ये सोल्यूशन है। मूविंग अहेड वी हैव द अदर फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली मास बाय वॉल्यूम, बाय का ये लाइन और ये रहा वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन इनटू 100। सेम यहाँ पे भी सोल्यूशन ऊपर आ रहा है सोल्यूट का, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को हम किस चीज से नापते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को हम नाप रहे हैं कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सोल्यूट के बेसिस पे हो रहा है ना, सैचुरेटेड भी उसी के बेसिस पे, अनसैचुरेटेड भी उसी के बेसिस पे, डाइल्यूट भी, कॉन्सेंट्रेटेड भी। हर केस में कॉन्सेंट्रेशन हमारा किसकी वजह से वेरी कर रहा है? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट। नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सिंपल। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। A solution contains 40 grams of common salt and 320 grams of water
तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा इसमें, सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्ट इज बीइंग एडेड, तो आ गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नाउ तो वाटर की क्वांटिटी क्या दे रखी है, 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो सिंपल, हाउ डू वी डू इट, 40 ग्राम अपॉन 320 ग्राम्स इनटू 100। ये 0 0 कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 8 जा 2, 4 2 जा 4, 25 जा कितना आया 12.5। थोड़े सा एरर कर दिया मैंने। Okay, so we had to take the mass of solution. So here instead of taking the mass of solvent, I took the mass of solvent. तो 320 plus 40 total mass of solution को हम ऐड करेंगे and 40 upon 360 हो जाएगा into 100. Okay, and then we can calculate it further, right? So ये आ गया डेसिमल्स में. You will have to learn क्या आएगा ये, 0 0 cancel, 1 जा 9 जा, तो this becomes 100 upon 9. इफ यू विल कैंसिल इट, वो अपने आप आ जाएगा कि 11.11%. ओके, मूविंग अहेड. ऐसी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स हम और भी सॉल्व कर सकते हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. नाउ व्हाट इज अ सस्पेंशन? Non-homogeneous systems like those obtained by group C in activity whatever it was, solids are dispersed in liquids are called suspension. जिसमें solid dispersed है liquid में but वो mixed नहीं है. तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं है पर सस्पेंडेड है थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. जैसे कि मैंने क्या एग्जांपल दिया था, सैंड इन वाटर. सिंपल, ठीक है, कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, वो उसने पार्टिकल ने ऑक्यूपाई नहीं करा स्पेसेस, वो बस तैर रहा है बीच में, इट इज सस्पेंडेड. सो पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई. यस, सैंड इज विजिबल टू योर नेकेड आई, यू कैन सी अ पार्टिकल ऑफ सैंड. प्रॉपर्टीज क्या हुई, हेट्रोजीनियस है, seen by can be seen by naked eyes, पार्टिकल का साइज बड़ा होगा. ठीक है, they scatter a beam of light passing through it and makes it path visible. So we will come to this, अभी आएंगे Tyndall effect तेरे को. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is the particle of suspension is unstable. सेपरेट कर सकते हैं कैसे, फिल्ट्रेशन से सैंड को सेपरेट कर सकते हैं ना हम. इफ यू अप्लाई फिल्टर पेपर एंड पास दिस सस्पेंशन थ्रू इट, क्या होगा, सैंड विल बी कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज मेनली डिसॉल्व्ड. इट इज नॉट डिसॉल्व्ड, इट इज जस्ट सस्पेंडेड, राइट? सो व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन, सस्पेंशन ब्रेक डाउन एंड डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर. अब कोलॉइड क्या होता है, अब क्या हो रहा है कोलॉइड में, क्या होगा कि अ कोलॉइड सोल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्या हो रहा है इसमें, पार्टिकल का साइज जो है वो सस्पेंशन से तो छोटा है बट यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द सोल्यूशन. ठीक है, तो स्मॉलर साइज है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है थ्रू आउट द सोल्यूशन. होमोजेनियस लगता है बट एक्चुअली है कैसा, हेट्रोजीनियस. बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज. दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट ऐसे. सी, इफ यू पास इट थ्रू दिस, you cannot see a beam यहाँ से पास होता हुआ. दिस इज प्लेन वाटर. ठीक है, यहाँ पे सपोज क्या ले रखा है, कॉपर सल्फेट. अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट. ये क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन हुआ, मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हुआ. ठीक है, बट व्हेन इन केस ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल अ कोलॉइड और अ सस्पेंशन, Tyndall effect is happening. Tyndall effect, the scattering of a beam of light when passed through an object, ठीक है, is known as Tyndall effect. So ये Tyndall effect हमें सिर्फ heterogeneous चीजों पे मिलता है, heterogeneous solutions पे मिलता है, heterogeneous mixtures पे मिलता है, and not in case of homogeneous mixtures, right? Moving to the next page. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. फॉरेस्ट में क्या होता है, मिस्ट. इसमें क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो कि ऐड करते हैं कोलॉइड की तरह, जो कि डिस्पोज्ड है एक मीडियम में. ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रोजीनियस है. टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आईज, पार्टिकल्स आर टू स्मॉल. ठीक है, पर इतने इनफ है कि वो स्कैटर कर पा रहे हैं. ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ठीक है, इसलिए वो स्टेबल है. Then they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but special technique of separation जैसे कि centrifugation, इससे आप separate कर सकते हो.
द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। जैसे वहां पे सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे थे, सॉल्यूट और क्या सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम हो गया हमारा सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेज हमारा हो गया सॉल्यूट। मतलब जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम और जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो है सॉल्यूट। इसको कैसे याद रखोगे, डिस्पर्स मीडियम, मीडियम में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, सॉल्वेंट प्रोवाइड कर रहा है मिक्स होने के लिए, ओके। सो द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, यही चीज एलैबोरेट कर रही है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। एग्जांपल्स दे रखे हैं थोड़े। दिस टेबल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस सी। ये है डिस्पर्स फेज, ये है डिस्पर्स मीडियम। आई विल चूज अनदर पेन, ओके। सो ये है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम एंड टाइप एंड एग्जाम्पल, ठीक है। सो विद लेट अस गो हेड। तो एक चीज मैं डिविजन तुम्हें बता देती हूँ। कोई भी चीज जब गैस में डिसॉल्व हो रही है, कोई भी चीज जब गैस में डिसॉल्व हो रही है वो बना रही है एरोसोल, ठीक है। और जब गैस किसी भी चीज में डिसॉल्व हो रहा है ना, वो बना रहा है फोम। चार तो ऐसे हो गए, गैस में कुछ भी डिसॉल्व हो रहा है वो हो गया एरोसोल, गैस किसी में भी हो रही है तो वो हो गया फोम, ठीक है। अब इससे भी इजी देखते हैं। सॉलिड किसी में भी होता है तो वो बनाएगा सोल, सॉलिड बनाएगा सोल। सॉलिड सॉलिड में तो वो बन गया सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड में है तो वो बन गया नॉर्मल सोल। याद क्या करना पड़ेगा बस, अब लिक्विड सॉलिड में और लिक्विड लिक्विड में। लिक्विड लिक्विड में बन गया इमल्जन, दो चीजें तो याद रखेंगे, लिक्विड लिक्विड में बन गया इमल्जन, ठीक है। और लिक्विड सॉलिड में क्या बन गया, जेल, इजी। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल। लिक्विड इन गैस एरोसोल बनेगा, एग्जांपल फ्लोर, क्लाउड, मिस्ट। ये टेबल यू विल हैव टू लर्न for anybody, for people in the 9th standard, for people who are preparing for competitive exams, anybody, you got to learn this table. Now solid को गैस में डालेंगे, एरोसोल बन रहा है, राइट। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, क्या हो रहा है इसमें, गैस के बीच में सॉलिड पार्टिकल्स है। गैस को लिक्विड में डाला बना फोम, लाइक शेविंग क्रीम। लिक्विड को लिक्विड में डाला बना क्या, इमल्जन, लाइक मिल्क फेस क्रीम। सॉलिड को लिक्विड में डाला तो क्या बना, सोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस को सॉलिड में डाला बना क्या, अगेन फोम। फोम मतलब फोम वो रुई वाला, सॉरी दैट कुशन वगैरह कवर वगैरह जो बनता है हमारा, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस। लिक्विड प्यूमाइस स्टोन, वो स्टोन होता है ना जो बेदिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे स्टोन होते हैं उसमें होल होल होते हैं, यू यूज इट फॉर टेकिंग अ बाथ, राइट, फॉर क्लीनिंग बेसिकली। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डालेंगे तो बनेगा जेल। जेल एग्जांपल जेली, चीज, बटर, एवरीथिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोल, नाउ यू नो, राइट। सॉरी, एग्जांपल ऑफ जेल, ठीक है, विच इज अ colloid. All of these is a colloid. All these examples are what, they are colloid. सॉलिड को सॉलिड में डालना, सॉलिड सोल बना, क्या होता है, एग्जांपल कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, एक्सेट्रा, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। इसके आगे का हमने पढ़ा था physical change, chemical change, elements, compounds, and now this table, it is going to be very important for the people in the 9th standard, and it can also be appearing as statement based question in terms of any competitive examination. So what is the difference between mixture and compound? तो जब एलिमेंट और कंपाउंड को जब मिक्स करते हैं एक मिक्सचर बनता है और कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है। अब कंपाउंड के केस में क्या हो रहा है, न्यू ही चीज बन के आ रही है, वो पुरानी चीज से मैच कहती ही नहीं है, ठीक है। मिक्सचर का कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है बट कंपाउंड का कॉम्पोजिशन सेम रहेगा। जैसे C प्लस ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमेशा CO2 के कंबाइन होने से, लाइक 1:2 के रेशियो में कंबाइन होने से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वरना नहीं। A mixture shows the properties of the constituent substances, मीन्स अगर नींबू और पानी को मिक्स किया तो नींबू और पानी की प्रॉपर्टीज दिखेंगे, ठीक है। कंपाउंड में क्या है, न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लाइक CO2 की प्रॉपर्टी ना C जैसी है ना O जैसी है। The constituents can be separated fairly easily by physical methods. Okay, constituents can be separated fairly easily by physical methods, right? जैसे इवेपोरेट करके नींबू पानी सेपरेट कर लिया था या फिर फिल्ट्रेशन करके हमने किसको, सस्पेंशन ऑफ मड इन वाटर को कर लिया था। बट कंपाउंड के केस में CO2 को तुम कैसे सेपरेट करोगे, CrO2? सो दे कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, I hope it was clear. Let us see this table. Mixture, homogeneous या heterogeneous. Homogeneous के uniform composition, heterogeneous के non uniform. Example sugar in water, example sand and salt, sugar वगैरह। Sand and salt means sand and salt को mix कर दिया आपस में, okay? So with this we are done with chapter number 2 as well. Soon we'll be taking up chapter number 3, right? I hope you like this video and it was helpful. Please let me know in case of any doubts or any improvements. I'm always open for feedback. It would be really helpful.
Thank you so much. All the best.